let's be and witness the participation of your own tiny tots right here on the stage, which we called as Cerebrum, in which you are going to witness 100% class participation of the students. Before we proceed and welcome the dignitaries, it's my humble request to my dear parents out there. It's a humble request to you all not to use your mobile phones here in the school premises. Right now, you're sitting in the school and you're here to watch and enjoy the program, as we are having the whole pics and the video recording right here, which you are going to get it after the program gets over. You can directly contact the teachers for this. So it's my humble request once again to all of you not to use your mobile phones. Thank you. I can see the smiling face out there. Are you all set? So let's begin with the welcome note. Would like to welcome Mrs. Kusum Lata ji. Hello ma'am, and welcome. She is the principal at Arwachin Dalbir Nagar. So I request our school HOS, Soumya Sharma ma'am, to kindly welcome Mrs. Kusum Lata ji. Flower pot, symbol of greenery and prosperity. We also have Mrs. Mona Luthra, HM of Arwachin World School here. Once again, I request Soumya ma'am to kindly welcome Mrs. Mona Luthra. Around her neck and a flower pot. All the leading ladies out there. Now it's time to introduce the Director Principal of the school, Dr. Urmila Sharma ma'am. Thank you ma'am for gracing the occasion. Along with her, our school academic advisor, Mr. R.K. Sharma. Our academic in charge, Mrs. Praveen Arora ma'am. Thank you dignitaries to be a part of this celebration where you are going to witness our tiny tots on the stage. So let's begin. For our diligent students, each one of you is a beacon of inspiration, and today's ceremony is a celebration of your dedication to the pursuit of knowledge. The achievements and accolades which we recently received by our students. Ready for a series of interactive presentation that will not only challenge your intellect but also foster collaboration and teamwork. Participate with zeal and let's make this event a memorable one. So, a big thank you to all the teachers, organizers and everyone who has worked hard behind the scenes to make this event possible today. So, all the hard work has been appreciated. Yes, once again, and dear students, my dear parents out there, we commence this auspicious event by invoking the divine presence of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the symbol of wisdom. Now we seek the divine presence of Lord Ganesha. So I invite, as are already tiny dolls gracing the stage, students of pre-primary A1 and A2. So let's begin this celebration with a prayer. कहाँ चला मैं
parents, please put your hands together for your lovely ones out there. रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से हो रे तेरे कोने में जो दार छुपा है मोरिया तेरी जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया मेरे सारे So Sakshat Ganpati Bappa is there with the premises of Arvachin Vivek Vihar. कर से गिरे It's prayer time, everyone. सुन ले And after this prayer, we are going to get lots and lots of blessings. तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा We are just the students of pre-primary A1, A2 in front of you. That's why we call them tiny dots. जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा देखेगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना See the vibrant smiles on their faces. Please put your hands together up high in the air for their motivation. तब हमको पाना है So that was a small prayer in the form of Ganesh Vandana, and the students of pre-primary A1 and A2 just performed it in front of you. So once again, a very big round of applause for them, my dear parents. Thank you, thank you. In the beginning, I told you it's time for the achievements and accolades too. So let's begin it, as our school students have brought laurels recently in different arenas. So for that, I would like to call the dignitaries to come up. Round of applause for our Director Principal, Dr. Urmila Sharma ma'am. So recently on 8th December, in very this month, we had a road safety felicitation ceremony which we are going to conduct here, which was conducted at Gyan Mandir Public School on 8th of December. So students of 11th, 10th, 11th and 12th are the achievers at that. So let's begin it with the felicitation ceremony. Gauri Sharma, Ansh Mishra, Aditya Bharadwaj, who participated in movie making activity, have got the overall trophy, medals and certificates. So would like to call them on the stage, Gauri Sharma, Ansh Mishra and Aditya Bharadwaj. That was the event road safety held at Gyan Mandir Public School. So heartiest congratulations, free certificate and the medals. Yes. Next we have Shrujana Mishra and Prithvi Singh in making of PPT on hassle-free movement of traffic on road. They also got a trophy and a certificate.
this road safety activity on 8th of December 2023. So audience, आपका एक ही काम रहेगा throughout to put your hands together for each one of them who are coming up here on the stage. Next we had CBSE Adolescent Summit, which held between 19th to 21st of December 2023 recently, held at National Bal Bhavan. Students who got the laurels in classical dance by securing the first position, Disha Verma, student of 12th B. Can we have her on the stage, please? Getting a certificate and a medal. This adolescent summits held under the CBSE in the 19, 20 and 21st of December recently. Disha Verma participated in classical dance, student of 12th B. Utopia, painting. Kanak, student of 9th B. Can we have her on the stage, please? And next on my list is Chetna Katyal, who participated in Yuva Sansad, student of 9th C. And she is getting a participation certificate in Yuva Sansad. Chetna Katyal. और हमारे साथ है दिशा वर्मा, जो बहुत ही अच्छी कथक की नृत्य में पारंगत हैं। आईडीओ पर हुए नेशनल बाल भवन में आयोजित एक वर्कशॉप 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच आयोजित की गई और उसमें इन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। चाहूँगी जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें आप। और हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैम और हमारी HOS मिस सौम्या अनुरूप शर्मा मैम के पथ प्रदर्शन में ही ये कार्य संभव हो पाता है। उन्हीं का उत्साह, उन्हीं का ऊर्जा संचरण, उन्हीं का आशीर्वाद फलीभूत हो पाता है और बच्चे इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। मैम के लिए तालियां और आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग हमेशा चाहिएगा हमें। और इसी क्रम में आगे इन बच्चों को गाइड करने के लिए, तैयार करने के लिए हमारे साथ कोमल भाटिया मैम ने युवा सांसद जो चेतना कत्याल अभी आपने देखा को तैयार किया वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। तो कोमल भाटिया मैडम को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आईडीओ नेशनल बाल भवन में जो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का एक कार्यक्रम था, और क्योंकि हमारा पथ प्रदर्शक, हमारी उत्साहवर्धन, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करने वाली में सौम्या शर्मा, अनुप शर्मा मैम हमारे साथ हैं और उनको एक बहुत ही सुंदर, जैसी खूबसूरत वो हैं ऐसा ही एक खूबसूरत सर्टिफिकेट जो अभी आने वाला है सौम्या मैम के लिए। और साथ में हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम उर्मिला शर्मा मैम। और मैं चाहूँगी कि दर्शकों को, ऑडियंस को ये सर्टिफिकेट दिखाया जाए। इसका खूबसूरत रंग, बेहतरीन इस पर लिखा हुआ जो डिटेल है, जो वर्णन किया गया है, प्रिंसिपल अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत मुबारक हो सौम्या मैम, प्रिंसिपल मैम। थैंक यू। ऐसी गाइडेंस, ऐसी ही एनर्जी फ्लो हमें चाहिएगा भविष्य में आपके द्वारा। प्रोसेस से तैयारी कराई और काफ़ी महीनों का ये संघर्ष था, ये हार्डवर्क था, परिश्रम था। कोमल भाटिया मैम, जिनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया, और मैम के हाथों से सर्टिफिकेट लेते हुए सौम्या मैम के साथ
इसी श्रेणी में अगला नाम है इति सिंगल मैम का। इति सिंगल मैम। After Miss Iti, next in the lieu we have Mrs. Sudesh Kaushik, whom you are hearing just now on the stage as a presenter, will receive for CBSE Adolescent Summit. Thank you Soumya ma'am and all the teachers, faculty out there to be a part of this event and motivating each one of them to get and brought the laurels for the school. Thank you dignitaries to be a part of this event. Thank you so much. हमारे साथ खूबसूरत मैम, इंटेलिजेंट युवा आइकन हमारे साथ हैं मिस सौम्या अनुरूप शर्मा मैम। थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगी मैम, एक बार आपको आना पड़ेगा स्टेज पर। आपके शब्दों के बगैर, आपके आशीर्वाद के बगैर, आपकी गाइडेंस के बगैर मिस सौम्या अनुरूप शर्मा मैम जो युवा आइकन हैं और एनर्जी से भरपूर, नए नए आइडियाज़, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और उनके जो आइडियाज़ होते हैं वही प्रोग्राम में इतने अच्छे सक्सेसफुल प्रोग्राम के रूप में आप देख पाते हैं। मिस सौम्या अनुरूप शर्मा मैम। Good morning to all the parents. Good morning to all the parents. अच्छा लगता है जब आप किसी को ग्रीट करें कि हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। एंड आप सबके लिए I'll always say thank you. थैंक यू, आप हमारी टीचर्स का इतना साथ देते हैं, अपने बच्चों को इतना साथ देते हैं। आई होप आज का प्रोग्राम आप इंजॉय करें। बट मोस्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, आर नर्सरी डिपार्टमेंट, आर फर्स्ट एंड सेकेंड डिपार्टमेंट। ये लोग जितना हार्ड वर्क करते हैं, आई होप वो हार्ड वर्क आप लोगों तक पहुँचे एंड आज का शो आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। So nice of you, ma'am. So that was our school HOS, Miss Soumya Sharma. So can we have a big round of applause once again, my dear ladies and gentlemen? So it is with great pleasure I invite our respected Director Principal of the school to address all of us present here. Our school Director Principal, Dr. Urmila Sharma. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लास्ट गुड मॉर्निंग कर रही क्योंकि मैं आपसे कहूँगी, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। हम संस्कार से ओतप्रोत होने चाहिए। हम भारतीय हैं, अरबा चीन के प्रांगण में आपके बच्चे के आने का मतलब संस्कारों से भरपूर होना। जो कुछ हम अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ आए हैं, किसी कारणवश, परिस्थितिवश, परिवार के अनेकों दुविधाओं के कारण या न्यूक्लियर फैमिली के कारण, हम जो कुछ भूल चुके हैं, धूमिल हो चुके हैं या अपने बच्चे के माध्यम से कुछ देखना चाहते हैं, तो आज आप लोग जो सब बैठे हैं, आप सबका सबसे पहले स्वागत। आपको वो अधिकार मिला जो आज आप माँ बाप कहलाने के लायक हैं। ये वो बच्चा है जो आपको ये ओहदा दे रहा है, वरना आप किसी की बेटी, किसी का बेटा और पति पत्नी होते हैं, लेकिन यही बच्चा है जो आपके परिवार को संपूर्ण कर रहा है। Am I right or wrong? यस, तो तालियां होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। लेकिन आपको ये ओहदा बच्चा तो दिला रहा है, लेकिन आपको जो जन्म देने वाले हैं, कुछ बुजुर्ग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। हम कभी ऊपर ही ना देखें, हमें नीचे भी देखना चाहिए। तो अपने से नीचे, अपने से ऊपर वालों को, सभी को देखते हुए
परिवार की गरिमा को बनाने के लिए हमें बहुत कुछ अब बच्चों के माध्यम से सीखना है। यही कारण है आज आप और मैं यहाँ रूबरू हुए हैं। ये आपका शायद पीएस और पीपी के बच्चे हैं यहाँ 1 साल वाला बच्चा भी है जिसके पेरेंट्स और 2 साल वाला भी है जो यहाँ स्कूल में पढ़ रहा था। पर 2 साल में हमने उस बच्चे के अंदर क्या इजाफा देखा, मेरे बच्चे ने क्या सीखा, ये आकलन करना भी जरूरी। इसी के लिए हम आपको बार बार स्कूल बुलाते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में बच्चा आता है और माँ के बहुत जोर से बैग पटकता होगा, सब अपने में फ्लैशबैक में चले जाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, और माँ कहेगी बेटा भूख लगी होगी, आज मैंने तेरे नाम का पास्ता बनाया है या चाउमीन बनाया है। बच्चा खुश होते हुए आता है और माँ उसका माथा चूमती है और बड़ी अच्छे से उसे निहारती है कि मेरा बच्चा कितना खुश है। दैट इज पॉजिटिविटी। बट मैं दोनों चीज़ साथ साथ बोलूँगी। नेगेटिविटी कि मैं अपने बच्चों को क्या खिला रही हूँ, तो उस तरफ भी ध्यान रखते हुए कि मुझे बच्चे के शरीर का पूरा विकास चाहिए, क्यों ना उसे भारतीयता के अंतर लाते हुए दाल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, इन सब चीज़ों को खिलाऊं, बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप करूं। ये रहा एक माँ का स्वरूप। लेकिन किसी एक कोने में दादी बैठी है और वो देख रही है कि मैं जिस बहू को ब्याह कर लाई थी वो इस बच्चे का कितना अच्छा भरण पोषण कर रही है। उसे एक शांति होती है, इतनी अच्छी मेरे बेटे को भी रखती होगी। वो कमरे की बात अलग, आप कितने लड़ते, लेकिन माँ की आंखें जो देखती हैं वो ही सच लगता है। और जब बेटा गलती से माँ की तरफ मुड़कर देख ले और उसे लगे कि मेरी माँ के चेहरे पे बड़ा सुकून है, तो वो बेटा कितना अंदर से खुश है, इसका अंदाजा किसी भी स्त्री को नहीं हो सकता। मैं पुरुष के लिए तालियां चाहूंगी। ये वो बलि के बकरे होते हैं, गलत शब्द मत जाइएगा, अच्छा और बुरा दोनों होता है। स्त्रियां उन्हें जिन्हें हम बहुत कहते हैं सहानुभूति की पात्र हैं, लेकिन पुरुष उससे ज़्यादा सहानुभूति का पात्र होता है। यह वो व्यक्ति है जो चौराहे पर खड़ा होता है, जिसकी चारों तरफ जिम्मेवारियां होती हैं कि एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी पत्नी है, एक तरफ मेरे बच्चे हैं और चौथा मेरा मायका है। उस लड़की को भी बहू रूप में बहुत कुछ करना पड़ता, पर कभी आपने सोचा कि हम अपने डिमांड्स को कैसे पूरा करते हैं? कभी बच्चे के माध्यम से, कभी मायके के माध्यम से और कभी स्कूल के नाम के माध्यम से। कभी ये सोचो वो पुरुष क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है? आपको लगेगा आज के सिनेरियो में ये नहीं है, लेकिन यही सच है जहाँ से आपकी आज काउंसलिंग शुरू होगी कि वो जो व्यक्ति खड़ा है जो आपको इस घर से में लेके आया था, वो क्या चाहता है। वो एक स्त्री से चाहता है कि जो मेरा बच्चा है इसका बहुत अच्छे से लालन पालन करे, मेरे माता पिता की सेवा करे और मेरे घर को स्वर्ग बना दे। बस एक पुरुष की इतनी सी उम्मीद होती है एक अपनी पत्नी से। वो चौराहे पे खड़ा होकर सोचता, आज मैंने इसकी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं पत्नी को कैसे कमरे में जाके समझाऊंगा, और पत्नी को समझा दिया तो माँ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। ये बैलेंस बनाना एक पुरुष के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और यही हमारा कर्तव्य है कि हमें ये करना चाहिए। यकीन मानिए आज तक मैंने किसी भी स्त्री को हार्ट अटैक होते नहीं देखा, सिर्फ पुरुष को होता है। यस और नो? यस, तो तालियां पुरुष के लिए कि वो अपने मन की बात कभी भी किसी को नहीं कह पाता। वो कभी कभी ये सोचता मुझे घर ही नहीं जाना चाहिए,
मैं क्या करूँगा घर जाके? जिनके लिए मैं ज़िंदगी निकालता हूँ, सब काम करता हूँ, वो माँ मुझे नहीं समझती, वो पत्नी मुझे नहीं समझती, तो बच्चे क्या समझेंगे? यही संस्कार हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, संस्कार। अर्वाचीन में आने का मतलब कि आपके बच्चों को उन चीज़ों से अवगत कराना और माँ घर पर जाकर माँ के द्वारा उन्हें पूरा करना। तो पहला आपका पॉइंट है कि अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श आप कराएंगे। आज आप इस बात से एग्री होंगे? बुजुर्गों की सेवा करेंगे, अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढालते हुए सास को माँ का दर्जा देंगे या नहीं? कुछ के चेहरे पे हंसी और कुछ के चेहरे की भाव भंगिमा बड़ी अजीब सी, तो लगता कुछ को मेरी बात पसंद नहीं आई है तो तालियां होंगी, वरना तालियां नहीं होंगी। हम अपनी जिंदगी को पटरी पर चलाने के लिए, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए तालमेल की आवश्यकता है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ पति से उम्मीद करना गलत है, पत्नी से उम्मीद करना गलत है। दोनों से उम्मीद करें, सहयोग के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन तीसरा पार्ट आ गया कि पति पत्नी हो या वो आपका स्कूल है, जो आप दोनों की तालियां हाथ आप मिलाएंगे तो नमस्कार निकलेगा, तो वो स्कूल के लिए समर्पित होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट्स को अर्वाचीन के लिए समर्पित होना पड़ेगा, स्कूल पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं तो आप बच्चे के लिए कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। ये नहीं कि आज मैंने एक पेरेंट को बुलाया, मेरे टीचर ने, कि मैम इसे पार्टिसिपेट करना है, तो आप कहेंगे अच्छा स्कूल ड्रेस दे रहा है, कितने पैसे किराए पे ले लेंगे? नहीं, आप ये देखिए कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्रेस को कितने बार बच्चे पहनते हैं। तो हमने वो सिनेरियो बदला कोविड से कि हर बच्चे की अपनी यूनिफॉर्म, अपनी ड्रेस होगी, बच्चा उसे पे करेगा, पर वो बच्चे की अपनी होगी। जो आपके अपने स्कूल की HOS हैं, वो इस स्कूल की एलुमिनाई भी हैं, वो हॉस्टल में पढ़ी हैं, और ये सब उन्हीं के द्वारा आगे शब्द लाए गए कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी सारी ड्रेसेस उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं कि जब मैं 3rd क्लास में थी तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी। वो एक पूरा बॉक्स भर के आप ससुराल देंगे, ये मेरी बच्ची के साथ, ये मेरी बच्ची का कैलिबर। आप है तो आपकी माँ इन बातों को कहती होगी कि मेरी बच्ची सर्वगुण संपन्न है, तो सास कहेगी करके तो दिखाए। तो वो अपने कैलिबर को बाहर निकाले आप, पर प्यार के साथ, बच्चे के माध्यम से। हस्बैंड को कभी तंग ना करें। हस्बैंड का काम, एक पुरुष का काम कमा के लाना है, सिर्फ कमा के लाना है। अप टू 8th क्लास ये मेरे स्कूल का नियम कि मैं सिर्फ मदर से मिलती हूँ, क्योंकि माँ के पास ही बच्चा 24 घंटे में से 6 घंटे स्कूल के निकाल दीजिए तो 18 घंटे रहता है, वही उसे पढ़ पाती है। यदि उसका वो गलत बात पे फेवर ले रही है और पति से कुछ छुपा रही है, तो बच्ची को गलत रास्ते पे ले जा रही है। और यदि उसको 2 चपेड़ मारती है, समझिए वो माँ उसकी हमदर्द है। लेकिन आज बच्चा जब टीन एज में आ जाता है, 13 to 19, बच्चा जब टीन एज पर आ जाता है, या बच्चे के जूते का नंबर माँ या पिता के बराबर हो जाता है, तब उसे दोस्त मान लेना चाहिए और एक दोस्त की तरह उसके साथ ट्रीट कीजिए। यकीन मानिए उसके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, उसे फ़ोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एवरी सैटरडे वीक में एक दिन करिए, चलिए लेट्स गो मूवी देख के आते हैं, चलिए आज नानी के जाते हैं, आज हमको कुतुब मीनार दिखा के लाते हैं, आज हम ये करते। तो उस बच्चे को किसी भी दोस्त की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? और ये सब करते रहेंगे और पुरुष निहारता रहेगा और अंदर अंदर इतना खुश होगा कि ये मेरी पत्नी कितनी अच्छी। लेकिन पुरुष के अंदर भी एक कमी है,
को कभी मुंह से किसी की प्रशंसा नहीं करते। जो एक स्त्री है वो सिर्फ प्रशंसा की भूखी होती। तालियां के लिए। पेरेंट्स से भी मुझे चाहिए कि जब समय मिले तब आप अपनी पत्नी के साथ 2 अच्छे शब्द बोलें, उससे रिपोर्ट मांगें और उसे कभी महीने 1 महीने में कुछ गिफ्ट दें तो वो दुगना आपको आउटपुट देगी। वो तब ये नहीं समझे कि वो कैसी चीज़ इसका बच्चा इसकी बच्ची के लिए मैंने किया, ये गिफ्ट मिला तो 2 गुना करेगी जैसे हम बच्चे के साथ करते हैं। तो आज बहुत दिन बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। बच्ची ने आपके क्या किया, बच्चे ने आपके क्या सीखा, वो सब आज अब इस स्टेज पे बच्चों के माध्यम से देखेंगे और जो कमी है वो भी देखेगा। एक और पॉइंट, आज जो बच्चा सुबह यहाँ कर रहा था, एक लड़की उसमें खड़ी थी, बहुत गोरी सी स्मार्ट सी, वो अपने शायद पेरेंट्स को निहार रही थी। मैं चाहूँगी आज जिसके बच्चे ने जहाँ भी पार्टिसिपेट किया है उसकी माता या पिता शीशे के सामने खड़े होके एक बार प्रैक्टिस करें और बच्चे से पूछे क्या मैंने गलत किया। तब बच्चे के आप वो पूछना, रेस्पॉन्स करेंगे नहीं मम्मा आपका यहाँ गलत था, पापा आपका हाथ ऐसे था। तो स्टेज पर बच्चे का आना ही बहुत बड़ी बात है। बच्चे का हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता, हर बच्चे का आईक्यू लेवल फ़र्क है। जो बच्चा पढ़ाई में वीक होगा वो ज़रूर किसी और एक्टिविटी में बहुत आगे होगा। हमें उन बच्चों को ऐसे हमें स्क्रूटनी करना है। आपके माध्यम से हमें जानना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या खासियत है। वो अपनी डायरी में आप लिख के देंगे कि हम उस तरफ उसका ध्यान दे सकें। कभी कभी बच्चा स्कूल में वो रेस्पॉन्स नहीं देता, या क्योंकि माँ बचपन से देखती है, जब 9 महीने का जब माँ कहती है फैन वेयर इज़ योर नोज़, बच्चा गलती से हाथ लगाता है तो माँ सोच लेती है तो बिल्कुल वो बन गया है, मैं काले बन गया है, ये तो हमारा मोदी जी बन गया है। लेकिन वो IQ लेवल जो बच्चा उसे सिंबॉलिक समझता है। जैसे जैसे आगे बर्डन पड़ता है बच्चा पीछे की तरफ चलता चला जाता है। जो हम 9 महीने के बच्चे के साथ करते हैं हमें हर समय करना है, हर समय उसके IQ लेवल को हमें चेक करना है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ नॉटी है, क्या शरारत की है। मुझे याद है कि एक बच्चा मेरे सामने स्कूल में था, वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ देता था और क्लास टीचर कहती थी ये बच्चा बड़ा शरारती है। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि इसकी सब हरकत को नोट कीजिए। वो बच्चा आज इंजीनियर है, क्योंकि उस बच्चे की उस चीज़ को उन्होंने पॉजिटिविटी में बदल दिया। इसकी इस तरफ खासियत है, उसे कुछ रिसर्च करना है, वो कुछ करना चाहता है, वो बोल नहीं पा रहा, वो कह नहीं पा रहा, लेकिन वो कुछ करना चाहता है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाइए। हर बच्चे को जो स्कूल कहता पार्टिसिपेट कराइए। अभी हम समर कैंप भी लगाएंगे आपका, 100% आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, नहीं, स्कूल भेजिए, बच्चों को देखिए बच्चे ने क्या किया, उसके आउटपुट लीजिए। और आप हर पेरेंट का, हर बच्चे का पोर्टल बना हुआ है। यदि आपको कुछ भी बुरा लगता है या बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप उस पोर्टल पर लिख सकते हैं। आपकी इंक्वायरी का जवाब वो टीचर देगी। और यदि जवाब बाय द वे नहीं मिल पाता फिर आप रिमाइंडर डाल दीजिए हम्बल रिक्वेस्ट में कि मुझे इस चीज़ की परेशानी, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स वर्किंग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, आज उसके बिना कार्य नहीं चलता। तो हम अपना करस्पॉन्डेंस जारी रखेंगे, बच्चे भी ध्यान देंगे। और आपको एक लाइन बताऊं कि आपके पास ये 24 घंटे हैं, ना आप ब्रह्मा ना मैं ब्रह्मा, गवर्नमेंट वो गॉड के द्वारा दिया 24 घंटे का टाइम और 365 दिन। जो आज का दिन है वो कल नहीं आएगा, उसे अब चाह के भी नहीं लौट पाएंगे। तो अपना ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाइए। यू हैव 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4, कि 6 घंटे आपके स्कूल के, 6 घंटे बच्चे के सोने के लिए, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी कराने के लिए और 6 घंटे अदर एक्टिविटीज़ के लिए। कहीं कोई बच्चा या माँ बाप बिजी नहीं होते अगर हम टाइम टेबल बना के चलें।
और एक अहम बात कि मुझे जो सभी पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि बच्चा ट्यूशन गया था। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट और नियम ये कहता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि बच्चों को ट्यूशन की लत मत डालिए। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से पड़ोस में आसपास में ट्यूशन मत भेजिए। हमारे यहाँ रेमेडियल क्लासेस का प्रोविज़न है। हम रोज़ाना एक सब्जेक्ट इस पर कवर करते हैं, बच्चे का होमवर्क, बच्चे का क्लास वर्क, बच्चा कहाँ वीक है। आप उस नाम पर एक गुल्लक रखिए कि मुझे 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, मुझे 1000 रुपये उस बच्चे के खर्च करने, उसमें डालते रहिए। साल के अंदर आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे, वो आपकी फीमेल की अर्निंग होगी। बट अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। मुझे ऐसा सुनने में ना आए कि मैंने ट्यूशन लगाया है। हम टीचर्स को वो फैसिलिटी देते हैं, अच्छा पे करते हैं। टीचर हमारी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास टीचर होती हैं, हम उसे गेन नहीं करते। तो कोलैबोरेशन से चलिए, टीचर एंड टॉट अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स, कि हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे। और एक और अहम बात, देखिए मेरी जो स्पीच है वो लिख कर नहीं होती, मुझे एज पर रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपकी तरह अपने आप को माँ के फॉर्म में भी रख लेती हूँ और टीचर और प्रिंसिपल के रूप में भी रख लेती हूँ कि जब जब बच्चे के एग्ज़ाम हो, आपको कैलेंडर मिलता है तो उसे फॉलो कीजिए। उस समय कितनी भी अर्जेंट आपके यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, कहीं कुछ हो, एडजस्ट कीजिए प्लीज़, कि आज मैं शादी में गई थी या कल मेरे रिश्ते, कोई काम नहीं आता। आपका बच्चा आपका भविष्य है, उसके लिए सेक्रीफाइस कीजिए। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े हैं। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो 10th क्लास जब 12 जब होती थी तो मैं बच्चे के लिए एक रजिस्टर बनाती थी सब्जेक्ट वाइज। मैंने क्वेश्चनरी लिखी, उसके बीच में जगह छोड़ी और पेंसिल से उस बच्चे को बिठा के मैंने काम कराया। स्कूल टीचर के पास भेजा, उसने चेक किया, फिर रब किया और फिर उसका आंसर लिखवाया। बच्चे के नंबर अपने आप अच्छे आ जाएंगे। यही ट्यूशन है, यही आपकी पढ़ाई है, यही आपका कैलिबर है, यही बच्चे की प्रोग्रेसिव है, यही ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन ये रूबरू होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी था कि हम आपको अवगत करा सकें। काफ़ी पेरेंट्स को नहीं पता कि रेमेडियल क्लास होती है। खुद भी एंजॉय कीजिए। वो जो 2 घंटे यहाँ बच्चे के लगेंगे ना, वो 2 घंटे आपके लाइफ के लिए मिलेंगे कि आज मुझे मार्केट जाना, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, बच्चे को भी कुछ खिलाना है। मार्केट कैसे घूमते हैं, सेफ्टी कैसे होती है, रोड पे कैसे पार करते हैं, ये सब जब तक बाहर नहीं निकाल लोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए तालियां, जो पूरे साल आपके बच्चे के साथ अपना टाइम डिवोट करती हैं। ये टीचर के साथ साथ परिवार की भी हिस्सेदार हैं। किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, लेकिन वो सारी परिस्थितियों को छोड़ के स्कूल में आके आपके बच्चे को डील करती हैं। और किसी दिन को टीचर ऊंचा भी बोल सकती है बच्चे के साथ, तो तब उसे एक प्रोजेक्ट ना बना के लेके आकर स्कूल आए, अब नीचे पूछे मैम ऑल एवरीथिंग इज ओके और नॉट, कोई परेशानी तो नहीं। देन आस्क कि कल बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, तो वो भी इतनी कूल हो जाएगी आपकी इस लाइन से, कहेगी मैं इसे देखती हूँ, अगर नहीं है तो सॉरी कर देगी। तो हमें ये सब बदलना है, हमें सब ये बदलना है। आज 11 बजे हमारे गीता का एक पाठ है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। 11 बजे सभी को एक गीता का श्लोक सबने अपने अपने घर में जाके पढ़ना है, ऑफिस में तो वहाँ भी पढ़ना है, और उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पोर्टल पे भेजना है कि हमने अपने बच्चों को एक्टिविटी कराई। इसी तरह 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो उस दिन भी शायद आपके मोदी जी ने उस पर गुजारिश किया हुआ है कि उस तरह आप अपने घर में पूजा पाठ करें, पर बच्चों के साथ करें। दिन में नहीं है तो शाम को जरूर करें और उसे ज्ञान आप दें, हम नहीं, आप दें कि आज हम क्यों कर रहे हैं,
भगवान राम कौन थे, तो हमें अपने इतिहास को दोबारा से आगे लाना है, पर पति को भी साथ बिठाएं। वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आपके कि ये वाकई ज्ञान रखती है, जिसे मैं लाई अनपढ़ नहीं है, ज्ञानी है, ये मुझे भी सुधार सकती है। तो इन सभी चीज़ों के साथ सभी का एक बार धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, हमारी HOS को 2021 में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें एडु एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया उसी साल। विभिन्न पब्लिशर्स ने उन्हें सम्मानित किया और आज उन्हें नेशनल स्टेडियम में भी फेलिसिटेट करा जा रहा है। शाम के 3 बजे उन्हें फिर जाना है। डिटेल हमारे सुदेश कौशिक जी देंगे बाद में। और अभी वो आपके बीच से उठ के गई हैं, तो क्योंकि वो एलुमनाई है बाल भारती पब्लिक स्कूल की, तो आज उनको एज ए गेस्ट भी वहाँ बुलाया गया है, इसीलिए आपके बीच में उपस्थित नहीं है। आपके बच्चे का डेवलपमेंट आपकी सौम्या अनूप शर्मा जी के हाथों में होना है। कोई भी दिक्कत है, जब आपको लगे आप आए, वो हर सभी से मिलेगी। मैं बच्चों से एज माँ मिलती थी, लेकिन वो एज एल्डर सिस्टर मिलती हैं। गोदी में बैठा के बच्चे को वो लंच करा देती हैं, बच्चे के साथ वो खेलने लगती हैं। तो ये बच्चे के अंदर हम एक डेवलपमेंट करते हैं, यही ज़रूरी है। अब आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा की मेरे बच्चे ने क्या करना, तो चलिए उस सिनेरियो की तरफ चलते हुए एक बार फिर सभी का धन्यवाद, नमस्कार। So that was our school director principal, Dr. Urmila Sharma. Can we have a big round of applause once again, ladies and gentlemen? Thank you so much, ma'am, for taking the time to address us today. Your wisdom and guidance are invaluable, and we eagerly look forward to hearing your words. Thank you. So welcoming students of preschool A2. Please put down your mobile phones. It's my humble request, and put your hands together. Put your hands together, everyone. नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं। Dear all, it's a welcome note for all of you. Please put your hands together. वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश है सारा स्कूल। Thank you, lovely kiddos. It was just wonderful and a beautiful kickoff of the program. Thank you. A wonderful welcome note. Now some dancing rockets on the stage, which are going to do some swag in front of you.
Yes, swag से करेंगे सबका स्वागत. Here we have preschool A3. In between, would like to announce card number DL9CBA2511 and DL. Good morning to our parents and teachers above Rashaba for preschool APP. This is the morning we are waiting for Sabbath. We children of our team are happy to welcome you on this special day. We children of preschool are coming with the good performance to welcome you on this special day. Yes, let's enjoy and let's begin the music. was a full welcome in style. So in Golden Bubbles के लिए a very big round of applause. Thank you, kiddos. So that was the Dancing Rockets of Preschool A3. Now it's time to showcase some rainbow. Coming on the stage, very, very tiny ones. Preschool A1. I know it was very, very difficult to take out the movements, the beats out of them. So it was their teachers, coordinators' hard work, which is going to depict right here on the stage. The previous event which you witnessed, Dancing Rockets, Preschool A3,
was coordinated by Mrs. Shilpa Gupta. And now preschool A1 on the stage, students of Mrs. Sudeshna Raha. I think without claps they won't start. Yes, it is much needed. Now, can we have the music, please? 3, let's go! So many colors way up high. So many colors touch the sky. So many colors you will see in a rainbow cheer. Now sing with me. Come on now. Red, green, yellow, blue. Orange, pink, purple too. Red, green, yellow, blue. Orange, pink, purple too. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. So many colors join as one. So many colors having fun. So many colors you will see in a rainbow cheer. Now sing with me. Come on now. Red, green, yellow, blue. Orange, pink, purple too. Red, green, yellow, blue. Orange, pink, purple too. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. So that was two tiny students of preschool A1 in front of you presenting the rainbow dance. Thank you.